Hello all dears, I am Subhasar and today I coming here to one very important topic and very IP topic, that's very interesting topic, that is polynomial. This topic basically starting from 8th standard 7 from 7 to 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल असल में होता क्या है और फिर उसके अलग अलग टाइप्स क्या है वो फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स polynomial means before knowing the polynomial let's we know algebraic expression. So what is my algebraic expression? So students, algebraic expression means what? Expression means it is a representation. Expression means it is a showing, mathematical showing, in that if you show numbers, variables, coefficients using addition, subtraction, multiplication and division operations. So algebraic expression में बेसिकली होता क्या है, अलग अलग नंबर्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, और अगर इन सबको अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू अगर एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सो वो जो स्टेटमेंट मिलेगा, वो जो प्रेजेंटेशन मिलेगा, दैट्स कॉल्ड algebraic expression. Okay, let's we know that. Suppose I am writing here 4. We'll write numbers. Which are the numbers? Numbers are 4, 3, -2, 6, 100, 2 upon 3, 0.5, etc. All these are numbers. Now variables. What is my variables? Variables are considered as small English alphabetical small a to small z. All these small letters of English alphabets are considered as a variables. Variables are basically those numbers. वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे लिए अननोन है, जो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, वेरिएबल्स यूज करना है. जैसे एग्जांपल, सपोज इन माय हैंड कुछ अमाउंट है, मेरे हाथ में कुछ अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट, इसमें से 10 रुपीज़ लेके मैंने इस हाथ में रख दिया. फिर भी इस हाथ में अभी रिमेनिंग है 5 रुपीज़. कितने रुपीज़ है? 5 रुपीज़. तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितने रुपीज़ थे ये नहीं पता है. सो जो अमाउंट हमें नहीं पता है, लेट्स कंसीडर x. स्टार्टिंग में मेरे पास x इतने रुपीज़ थे, उसमें से मैंने आई टेकन 10 रुपीज़ आउटसाइड. अगर मैंने 10 रुपीज़ आउटसाइड लिया तो माइनस हो गए. फिर भी x में से कुछ समथिंग अमाउंट था, उसमें से मैंने 10 रुपीज़ निकाले, फिर भी मेरे पास कुछ अमाउंट रह गया. तो कितना अमाउंट रह गया मेरे पास? 5 रुपीज़ रह गए. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है, राइट? ओके, सो यहाँ पे जो x है ना, ये x किसका काम कर रहा है? अननोन क्वांटिटी का काम कर रहा है. अननोन क्वांटिटी का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आया वेरिएबल क्या होता है, राइट? ओके, नाउ कोएफिशिएंट. अभी कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मींस एनी नंबर which is in a multiplicative form with a variable. Suppose consider 2 और x, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सो वी गेट 2x.
सो यहाँ पे ये x क्या है आपके लिए, वेरिएबल है, और इस 2 को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट. इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x. So we can represent so many coefficient of any variable, okay, like this. If you consider x minus 3y 2 upon 3z minus 5x square 8x cube, etc. So here students, 4 minus 3 2 by 3 minus 5 8, all these numbers are attached to variables. Then these numbers are called coefficients of these variables. तो यहाँ पे 4 किसका कोएफिशिएंट है, x का, -3 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, 2 upon 3 is coefficient of z, -5 is the coefficient of x square, 8 is coefficient of x cube, right? Okay. Now next students, if all these numbers, variables and coefficients, if you represent in the addition, subtraction, multiplication and division form, then we get algebraic expression. Okay, let's we find algebraic expression. Algebraic expression. Now look at it. Suppose I am writing here x and y in the addition form. So we get this is the algebraic expression. X plus y is the algebraic expression. Now suppose I am writing here 2 plus 9y. This again algebraic expression. So we can form so many algebraic expression using these operations, 4 operations, these 4 numbers, variables. Okay, like this. Let's see some more examples. Suppose I am writing here t upon y 6x square 9z minus 6y 2 divided by 3x 2x minus 6z square. So all these expressions friends, like x plus y plus z, all these expressions are called algebraic expression. All this called algebraic expression. So basically आपको समझ में algebraic expression क्या होता है, तो कोई भी 4 ऑपरेशंस का यूज करके अगर हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, इस तरह से दिखाया, किसको, नंबर्स को, वेरिएबल्स को और कोएफिशिएंट को इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है, algebraic expressions. These are called algebraic expression. अब बेसिकली इस algebraic expressions के अलग अलग वहाँ पे टाइप्स होते हैं, ठीक है. चलो देखेंगे कौन कौन से टाइप्स आते हैं, राइट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली नाउ अभी आता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है. सो पॉलिनोमियल ये बेसिकली algebraic expression होता है. Polynomial is a one type of a algebraic expression. Okay, but in that algebraic expression, if you consider the power of variable is whole number. अभी देखो यार, listen. Suppose I am considering some algebraic expression. अगर मैंने कुछ algebraic expression consider किए, जैसे x y raised to -5, 6x square, 9x plus 6z, 8x raised to -4, 2x raised to -1, 6x plus 6z, x plus y plus z plus w, etc. यहाँ पे मैंने कुछ algebraic expression लिखे, इन सबको पॉलिनोमियल कहना है क्या? ये सभी क्या हो गए? These are all algebraic expression. These are called algebraic expressions. All these are algebraic expression. But which algebraic expression we call polynomial? So polynomial means क्या होगा? Polynomial means
all the algebraic expression, any algebraic expression, any algebraic expression in which power of variable is a whole number. Power of the variable is whole number. Whole number means what? Whole number means it is a set of 0, 1, 2, 3, 4 and up to so on. ये सभी क्या होंगे? होल नंबर होंगे. तो इसमें से कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स के पावर्स क्या होने चाहिए? इस सेट में से एक नंबर होना चाहिए. या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर होना चाहिए. उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे. जस्ट लाइक एग्जांपल. Look at first example, xy. So xy is a polynomial. Why? Because x power is 1 and y power is 1. दोनों का पावर क्या है? पे 1 है, जो कि इसी होल नंबर में से ये दोनों में पावर क्या है? होल नंबर है. इसलिए ये क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया. नेक्स्ट, y raised to minus 5, is it polynomial? Y raised to minus 5? No, y raised to minus 5 is not a polynomial. Why? Because its power is negative. उसका पावर क्या रहेगा? नेगेटिव, जो कि है इंटीजर होगा. क्या होगा? इंटीजर. लेकिन हमें पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए. क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए. तो ये होगा क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल. लेट्स कंसीडर 6x square. Yes, this is the polynomial. 6x square is a polynomial. Next, 9x plus 6z. 9x plus 6z. This is also considered polynomial. Now, 8x raised to minus 4. Is it polynomial? No, it is not polynomial because power is negative. Okay. Next, 2x raised to minus 1. It is also not polynomial. Now 6x plus 6z. 6x plus 6z. This is again polynomial. Now x plus y plus zw. X plus y plus z plus w. This all are considered as a polynomial, right? अब मुझे बताओ, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है. क्या? सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर x raised to 2/3. X raised to 2/3. Is it polynomial? No, it is not considered as a polynomial. Why? Because its power is fraction. Its power is in a fraction form, fractional number. उसका पावर क्या रहेगा? फ्रैक्शनल नंबर रहेगा. और हमें तो पॉलिनोमियल में क्या चाहिए? फ्रैक्शनल नंबर चाहिए क्या? नहीं, हमें पावर क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए. इसलिए ये x raised to 2/3 ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा क्या? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट? सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल. आई होप आप सबको पॉलिनोमियल कंसेप्ट सबको समझ में आए, राइट? गुड. अभी इस पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स रहते हैं. देयर आर so many different types of this polynomial. Let's see that types of the polynomials. Okay, good. Let's see the types of the polynomials. Okay, types of the polynomials. Now consider, students, types of polynomials. Okay, basically types of polynomials are categorized in two ways, two subtypes. इसके basically two subtypes होते हैं. कौन से? Suppose first is based on
नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो कैटेगरी के बेस पे रहते हैं। एक रहता है नंबर ऑफ टर्म्स, एक रहता है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा रहता है डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, समझेंगे इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, अभी टर्म्स क्या होता है देखेंगे। टर्म्स मतलब क्या होता है बेसिकली, लेट्स बी I explain here. Look at students. Terms means what? Terms means what? Any single number or any number or any variable or variable with a coefficient is called a term, is called a term। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया x, y, z, these are considered as a single terms। okay, if I consider it xy, 2xy, 3x square minus y square, these are also considered as a terms। okay, now next minus 3 by 2 x y z, 4x square y square z raised to 5, these are also considered as a terms। okay, these are also considered as a terms। जो बेसिकली सिंगल यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, अगर और इन तीनों में अगर आप एक ऑपरेशन देखोगे, तीनों में कौन सा ऑपरेशन है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट, इस टर्म्स के बेस पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो विच आर दैट? फर्स्ट इज monomial means all the polynomials which having single term, सभी जो पॉलिनोमियल है जिनके सिंगल टर्म्स रहेंगे, जस्ट लाइक x y z। इसमें एग्जांपल देखेंगे आप, सो वी गेट x y z, उसके बाद 2x 4y square 9x raised to 5 etc x y z minus 5xz etc। ये जो एग्जांपल है ये सभी कहलाएंगे मोनोमियल्स। ओके, बिकॉज दे आर द सिंगल टर्म्स, दे आर कॉल्ड मोनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, that is binomial, binomial means two, in this binomial there is a group of two terms। if you consider any two terms with a plus or minus sign, they are attached by plus or minus sign, they are considered as a binomial। just like example 2x plus y, यहाँ पे देखो 2x and y ये दो अलग अलग टर्म्स, दे आर जॉइंड बाय प्लस साइन। नेक्स्ट y square minus z square, these are different two terms which are attached by minus sign, these are considered as binomial। now next students, that is trinomial, tri means three, trinomial means any polynomial which has contain three terms, जिसमें three terms रहेंगे उसको कहेंगे trinomial। just like examples x plus y plus z, next x square minus y square plus z cube। okay, next 2xy plus 3y minus z
Why? These are all called trinomials because they have these are the variables, these are the numbers which are the combined in a three form. Okay, it is a combination of three terms. तीन ग्रुप्स का जो कंबाइनिंग होता है, तीन ग्रुप्स अगर तीन यहाँ पे टर्म्स एक साथ आएंगे तो इनको क्या कहना है बच्चों? दे आर कंसिडर्ड एज अ ट्राइनोमियल, राइट? आपको ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। तो उससे पहले समझेंगे डिग्री क्या होता है। सो डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? डिग्री मींस व्हाट? लेट्स बी कंसीडर डिग्री। सो यहाँ पे डिग्री समझेंगे। लेट्स आई एम कंसीडरिंग वन पॉलिनोमियल x² + 2x + 6। यहाँ पे इस एग्जांपल में व्हाट इज द पावर ऑफ x? यहाँ पे जितने भी x है उनके पावर्स क्या है? तो यहाँ पे देखो, इस x का पावर कितना है? 2, इस x का पावर कितना है? 1, 2 and 1। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 2। 2 इज द हाईएस्ट पावर, 2 इज द हाईएस्ट पावर। और जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उसी हाईएस्ट पावर को क्या बोलना है? डिग्री बोलना है। क्या बोलना है? इट इज अ डिग्री, इट इज कॉल्ड डिग्री। उसे हाईएस्ट पावर को क्या बोलना है? डिग्री बोलना है। तो इस पॉलिनोमियल में इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। डिग्री मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। चलो उसी के बेस पे यहाँ पे 3 टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के, 3 टाइप्स है नंबर ऑफ बेस डिग्री। देखो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? लीनियर मींस ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 1 रहता है। तो एग्जांपल देखो, x + y x - z + w। यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग एग्जांपल्स है इसमें सब में जितने भी वेरिएबल्स है उनके हाईएस्ट पावर कितना है? 1 1 है। तो इसलिए उनको कहना है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 2 रहता है। इसलिए यानी कि डिग्री कितना रहता है? 2 रहता है। डिग्री क्या रहता है? 2। तो y² x² + 2x x² - 2x + 6 इस सब में देखोगे तो जहाँ पे -2x + 6 ये सभी एग्जांपल किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि वेरिएबल कैसा रहेगा? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या रहेगा? 2 रहेगा। दे आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड टाइप रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? कोई भी वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 3 रहता है। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 3 रहता है। ऐसे एग्जांपल को क्या बोलना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे एंड डिग्री के बेस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे आपके 3 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ डिग्री के बेस पे आपके 3 टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आया टॉपिक। सो इसके बाद इसके एडवांस जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल से बनेगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल से बनेगा क्यूबिक इक्वेशन। ये इसके एडवांस पार्ट है, इसका हायर लेवल है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो।